Okay, today we will start the unit 2. Okay, unit 2 will start. I hope everyone install the Microsoft Visual Studio in your system. Okay, अगर नहीं install कर तो please install it. If you don't have setup, so tell me, I will send. Okay, on the mail, uh, send me your email ID. ठीक है? अगर if you have already have the setup, then install it in your system. Okay, it is important. Microsoft Visual Studio is important because it's a practical subject. If you will not install the software in your system, then practical you cannot understand any practicals in these subjects. Okay, so you have to install it in your system. If you have the system, अगर system नहीं है तो just जो मैं कर रही हूँ उसको देखो. Yeah, ठीक है. Because practice is important. मैं करूँगी तो you will not get this clear concept, नहीं clear होगा आपका, नहीं ज़्यादा समझ में आएगा आपको. खुद से you have to do yourself programs को ही समझ में आएगा, otherwise ऊपर से जाएगा सब. ठीक है? Yes. uh, Unit 2 is web forms. Okay, Unit 2 है that is related to web forms, means web applications. We will learn about the web applications, web form. Clear? Wait. Okay, yes. In the unit one, we have learned basic about what is .NET, what is .NET framework, which type of application which we can create under the .NET framework, and different languages supported by the .NET framework. Okay, that we have learned in the unit one. Then we learn about the C Sharp language. Okay, basic C Sharp language. What is C Sharp language? It is object oriented, case sensitive, वगैरह. That we have learned. Okay, all the concepts, how to declare variable, then how to do programming in C Sharp language. Okay, that we have learned in the unit one. Okay, arrays, inheritance, then loops. Okay, जो भी programming concept है that we have covered in the unit one, and you have to write the assignments in your notebook. Okay, assignments लिखना है, and practical also you have to perform in your system. अगर system नहीं है, then you have to write the practicals. आपको practicals लिखना है notebook में. अगर system नहीं है तो भी you have to write the practicals in your notebook. ओके अगर है तो उसको वर्ड में कॉपी पेस्ट, मतलब वर्ड में उसको प्रिंट करना जो प्रोग्राम रन करके. ओके, यस. एंड नेक्स्ट, यस, प्रैक्टिकल, इसमें से प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2 आई हैव ऑलरेडी असाइन यू. ठीक है, वो आपको करना है जो मैंने आपको बताया. मैं अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करूंगी. यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रैक्टिकल जो मैंने बताया है. ठीक है, अगेन एंड अगेन आई विल नॉट टेल यू. प्लीज, अभी आप को करना है तो करना ही है. ठीक है, फिर ऐसे मत बोलना कि हमने नहीं बोला. ओके, तो जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स जो कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे वैसे वैसे उसका रिलेटेड प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करना है. हर एक चीज का बेसिक प्रैक्टिकल्स मैं आपको दिखाऊंगी. एडवांस प्रैक्टिकल यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ. ओके, तो फॉर ईच फॉर लूप जो जो न्यू कंसेप्ट के प्रैक्टिकल्स है वो मैंने आपको दिखाया. हाउ टू राइट कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन में कैसे करना है वो सब हमने देखा. प्रैक्टिकल्स 1 एंड 2 में जो प्रोग्राम्स है आपको कंसोल एप्लीकेशन में यू हैव टू परफॉर्म दैट प्रोग्राम्स. ओके, नाउ console application अभी close कर दो. Now we will learn the web application. Okay, now we will working with the web applications. We will make the web application from the unit 2. Okay, console application का वो basic था. आपको C Sharp language का जो basic concept जो है कि C Sharp language में मतलब कैसे array declare करते हैं, loop वगैरह, वो basic concept के लिए we have used the console application. Now web application is your main. You can create your websites also. You can create your web application also. Okay, so we will learn about the web forms. Now we will learn about the web forms. Okay, then how to select the web application. How to select the web application. So go to the file menu. Okay, जैसे आप जाते हो वैसे ही go to the file menu. Yes, screen is visible to everyone. Screen is visible. Okay, okay. Open the Microsoft Visual Studio. Okay, click on the file menu. Then new. जैसे कंसोल एप्लीकेशन के लिए करते थे वैसे ही करना है. देन प्रोजेक्ट्स, यू कैन आल्सो चूज द वेबसाइट, बट आई एम चूजिंग द प्रोजेक्ट. ठीक है, हम लोग प्रोजेक्ट्स अभी देखते हैं.
Wait, it will take few seconds. Okay. Languages, basic languages are given here. You can install more languages if you want. Okay. In our syllabus, we will learn the Visual C Sharp language, C Sharp language, C Sharp. Okay, has from the Sharp, SHRP ऐसे बोलते हैं, Visual C Sharp language. Now we will choose the web application. Which application? Web, ASP.NET web application. Previously हम जो प्रोग्रामिंग किया वो भी और क्या चूज करते थे? कंसोल एप्लीकेशन. नाउ ASP.NET वेब एप्लीकेशन. क्या मैं ले रही हूँ? ASP.NET वेब एप्लीकेशन. नाउ आई एम सिलेक्टिंग. ओके, लैंग्वेज इज सेम, सी शार्प लैंग्वेज. हम लोग वेब एप्लीकेशन को सी शार्प लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे बिकॉज इन आवर सिलेबस हमको वही पढ़ना है. ठीक है. So now I am selecting web application, ASP.NET web application. I am selecting. See, ASP.NET web application. Windows com application is also there. WPF application is also there. Console application is also there. Now, but हम लोग क्या करेंगे? ASP.NET web application. I am selecting. Okay, now here you can give the name. If you want to change the name, you can give the name here. By default ये यहाँ पे store हो रहा है. ठीक है? Yes, a project for creating application with the web user interface. ठीक है? यहाँ पे description उनका है. Yes, now click on the OK button. Click on the OK button. Depends uh, depends on your RAM and hard disk के बेस पे उसको उतना टाइम लेगा. ठीक है. The good RAM होगा, साइज होगा तो जल्दी थोड़ा रन होगा. ठीक है. रैम एंड आपका जो स्पेस जो है इसमें डिपेंड्स ऑन दैट वो उसका टाइम ले रहा है बिकॉज इसका सेटअप जो है वो बहुत लार्ज है, उसका साइज ज्यादा लगता है इसको. यस. ओके, नाउ यू कैन सी द वेब एप्लीकेशन 2. ये वेब एप्लीकेशन 2 है. ठीक है. वेब एप्लीकेशन 2. सी वेब एप्लीकेशन 2. ओके, बिकॉज मैंने नाम चेंज नहीं किया था. इसके पहले मैंने आपको 1 करके दिखाया था तो 1 था. दिस इज अ वेब एप्लीकेशन 2. ओके, दिस इज अ वेब एप्लीकेशन 2. What is the extension of page dot aspx? What is the extension? Dot aspx is extension. Okay, dot aspx is the extension. जैसे वर्ड फाइल के लिए you are giving the आप करते हो वैसे एक्सेल के लिए एक्सेल वैसे ही सेम वैसे ही इन द डॉट नेट में इफ यू आर चूजिंग द सी शार्प लैंग्वेज, अगर आप सी शार्प लैंग्वेज चूज करो तो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ वेब एप्लीकेशन का एक्सटेंशन क्या बन जाएगा? डॉट ASPX. क्या बन जाएगा? डॉट ASPX. दिस इज योर वेब पेज. दिस इज योर डिफॉल्ट वेब पेज. ओके, ये आपका डिफॉल्ट वेब पेज है. दिस वेब पेज जो है वो उन्होंने डिजाइन करके दिया है. उन्होंने वेलकम टू ASP.NET ऐसे कुछ लाइंस टाइप्स करके दिया है. अगर आपको ये पेज नहीं यूज करना है तो इसको इग्नोर करके यू कैन टेक द न्यू वेब फॉर्म भी ले सकते हो आप लोग. ठीक है. दिस इज योर सोल्यूशन एक्सप्लोरर. दिस विंडो जो है राइट साइड, दिस इज अ सोल्यूशन एक्सप्लोरर. ओके, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट पेज एक बना के दिया उन्होंने. अगर आपको ये नहीं चाहिए, ठीक है, इफ यू डोंट वांट दिस डिफॉल्ट पेज, आपको यूज नहीं करना तो यूज मत करो, चलेगा. ठीक है. अगर आपको न्यू वेब फॉर्म लेना है, इफ यू वांट टू मेक न्यू वेब फॉर्म तो न्यू वेब फॉर्म यू कैन टेक. कैसे लेना है? दिस इज अ सोल्यूशन एक्सप्लोरर. जितने भी पेजेस यू विल ऐड ना, ऑल पेजेस विल बी स्टोर हियर. ठीक है. जितना भी पेजेस आप लोगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे राइट क्लिक करके सिलेक्ट द वेब एप्लीकेशन, राइट क्लिक, एड एंड न्यू आइटम. क्लिक ऑन द न्यू आइटम. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग दी वेब फॉर्म. मैंने क्या लिया? वेब फॉर्म. वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज भी है. ठीक है. ओनली मास्टर पेज भी है, नेस्टेड मास्टर पेज भी. ये सारी चीजें हम लोग बाद में जैसे जैसे आएगा टॉपिक वैसे हम लोग कवर करेंगे. आज हम लोग वेब फॉर्म देखेंगे, बेसिक वेब फॉर्म. ओके, दिस इज अ वेब फॉर्म. ये बेसिक वेब फॉर्म सिलेक्ट किया. इसको नेम देना तो कैन गिव द नेम. मैं नहीं दे रही हूँ तो वेब फॉर्म 1 डॉट ASPX. डॉट ASPX इज एक्सटेंशन. Active server pages. What is the full form of ASPX? Active server pages. ASP, active server pages. Okay, active server pages. याद रखो उसका फुल फॉर्म. नोट डाउन. ओके, ऐड किया मैंने. Yes, this is your web form.
ओके वेब फॉर्म 1 जो हमने लिया, दिस इज अ ब्लैंक है यहाँ पे, दिस इज अ ब्लैंक वेब फॉर्म है, कैसा है, दिस इज अ ब्लैंक वेब फॉर्म। नाउ इन दिस वेब फॉर्म वी विल डिजाइन, हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, एंड देन हम लोग उसमें कोडिंग करेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेब फॉर्म, आपका ये वेब फॉर्म है, क्या नेम है, वेब फॉर्म 1.aspx। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नेम, जो लॉगिन नेम दे सकते हो, वॉट एवर पेजेस यू वांट टू मेक, तो वो नेम अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गिव द नेम टू दिस वेब फॉर्म्स, ओके। एक्सटेंशन है .aspx, दिस इज योर डिजाइन सरफेस, ये आपका डिजाइन सरफेस है, ठीक है। दिस इज योर सोल्यूशन एक्सप्लोरर, दिस इज योर सोल्यूशन एक्सप्लोरर। देखो वेब फॉर्म 1 मैंने यहाँ पे लिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो जितना भी पेजेस यू विल मेक ना, पेजेस या तो फिर मास्टर पेजेस, जो भी कुछ न्यू लोगे आप, ऑल कम्स हियर, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा। हमको उसको अगर अभी नाउ देखो मुझे यहाँ पे उनका डिफॉल्ट पेज अगर जाना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, आ गया ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पेज ओपन हो गया। नाउ आई वांट टू स्विच टू वेब फॉर्म 1, तो इस पे क्लिक करूंगी तो ऑटोमेटिकली वेब फॉर्म ओपन हो गया। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से यू कैन चूज एनी फाइल्स, आपको जो भी चूज करना है चूज कर सकते हो। ये जो बाकी है प्रॉपर्टीज, रेफरेंसेस, अकाउंट, फोल्डर, एप्लेट डेटा, दिस इज फॉर डेटाबेस, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ठीक है, ऑल आर दी बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे ASP.NET फोल्डर्स, ओके, बाय डिफॉल्ट फोल्डर्स कौन से तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें वी विल लर्न। बट अभी याद रखो दिस इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। व्हाट इज सॉल्यूशन एक्सप्लोरर? इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वी विल फाइंड ऑल आवर फाइल्स, ऑल आवर पेजेस, जो भी हम लोग ले रहे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो कहाँ पे सब स्टोर होगा, वेब ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में स्टोर होगा। दिस इज अ एप्लीकेशन नेम, ये आपका मेन एप्लीकेशन का नेम है। अंडर दी वन एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट दी डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस, वेब फॉर्म्स आप लोग बनाओगे, ठीक है। अंडर दी वन एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट दी डिफरेंट डिफरेंट वेब फॉर्म्स। एक वेबसाइट्स में क्या बनाते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस बनाते हो, तो सेम, ठीक है, वैसे वी कैन क्रिएट दी मल्टीपल पेजेस एंड उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, एक पेज पे से सेकंड पेज पे जाने के लिए, सेकंड पेज पे से थर्ड पेज पे जाने के लिए, ठीक है, वो हम लोग कनेक्टिविटी कनेक्ट करेंगे, देखेंगे हम लोग बाद में। नाउ यस, आपको अभी आज टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस वेब फॉर्म। ये वेब फॉर्म के बारे में हमको पढ़ना है कि व्हाट इज अ वेब फॉर्म, ओके। देन देयर आर टू वेज टू डिजाइन दी वेब फॉर्म्स, ओके। वेब फॉर्म को डिजाइन करने के लिए टू वेज है। द फर्स्ट इज डिजाइन सरफेस, दिस इज डिजाइन सरफेस। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग वी कैन टेक दी टूल एनी कंट्रोल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स, ठीक है। ये सारे कंट्रोल्स है, चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स ले लिया, डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया, ओके। एंटर करो। इफ यू वांट टू टेक अनदर कंट्रोल्स, कोई और कंट्रोल्स लेना है आपको, लिस्ट बॉक्स, ओके, ऑल आर दी कंट्रोल्स, हम लोग ये सारे कंट्रोल्स डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये कंट्रोल, तो दिस इज अ वन वे, ये एक वे है कि थ्रू टूल बॉक्स से यू कैन डायरेक्टली टेक दी कंट्रोल्स, ओके। ये सारे कंट्रोल्स आप उसको डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये डिजाइन सरफेस पे आ जाएगा। तो दिस इज अ वन वे। व्हाट इज द सेकंड वे? सेकंड वे क्या है, सी हियर सोर्स करके एक दिखाई दे रहा है सबको, हियर सोर्स ऑप्शन इज गिवन, SOURCE, सोर्स दिखाई दे रहा है, यस और नो? यस मैम। ओके, तो इसे क्लिक करोगे, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस सोर्स ना, तो आपका ये सोर्स जो वेब फॉर्म का जो है सोर्स HTML कोड है, ये कौन सा कोड है, HTML कोड है। तो यू कैन आल्सो क्रिएट योर कंट्रोल्स यूजिंग दी HTML कोड से भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो HTML लैंग्वेज में यू आर क्रिएटिंग चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स, देन जो भी HTML के कंट्रोल्स जो है, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, बटन्स, ठीक है, जो ऑल कंट्रोल्स ऑफ द HTML वी कैन क्रिएट, ठीक है, इन दी सोर्स फाइल में यू कैन राइट। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स के लिए या तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे कोडिंग करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इट विल डिस्प्ले हियर, हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिया चेक बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट कोडिंग आ गया, ASP चेक बॉक्स ID चेक बॉक्स 1 रन एट सर्वर। और रन एट सर्वर क्यों लिखा है? बिकॉज हमारा जो एप्लीकेशन है दैट वी रन ऑन दिस सर्वर, इसीलिए ऐड किया है रन एट सर्वर, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड और एक आपको चेक बॉक्स ऐड करना है, ठीक है, आपको और एक चेक बॉक्स ऐड करना है, तो यू कैन राइट फ्रॉम हियर आल्सो, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ओके। ESP सॉरी, यू कैन राइट फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है, आप यहाँ से भी लिख सकते हो ASP, देन वेट, ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ठीक है।
ASP, जैसे एस पे क्लिक करोगे तो यू कैन सी सारे कंट्रोल्स का नेम विल कम्स। ठीक है, आपको जो कंट्रोल्स लेना है यू कैन टेक। एड रोटेट इज अ कंट्रोल, बटन इज अ कंट्रोल, बुलेटेड लीव्स, कैलेंडर इज कंट्रोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कैलेंडर लेते हैं। ठीक है, एएसपी कैलेंडर। ठीक है, आईडी आईडी इक्वल्स टू आपको जो आईडी देना है यू कैन गिव दी आईडी। ठीक है, कैलेंडर आईडी हम लोग दे देते हैं। ठीक है, जो आपको आईडी यू कैन गिव, आप उसको आईडी का नेम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने दिया है वही देना है। ठीक है, यू कैन गिव एनी रन एट सर्वर। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है। ओके, जैसे कंसोल एप्लीकेशन में आ रहा था वैसे इसमें ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर लिया, यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलेंडर आ गया। okay, so you can do the designing with the two ways. The first is directly toolbox में से कंट्रोल उठा लो, या तो सोर्स कोड में जाके you can write the कोड, यू कैन ऑल्सो राइट दिस कोड। ठीक है, इन द सोर्स में जाके आप ऐसे कोड लोगे कंट्रोल्स क्रिएट करने के, तो डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज डिजाइन सरफेस में से डायरेक्टली कंट्रोल्स अवेलेबल है। ऑल दिस कंट्रोल्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल्स। ठीक है, डोंट वरी, ये सारे जो कंट्रोल्स हैं हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। बुलेटेड लीव्स, एड रोटेटर, चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, ये जितने भी कंट्रोल्स है ऑल कंट्रोल्स आई विल टीच यू डिटेल्स विद द एग्जांपल के साथ हम लोग करेंगे, सो डोंट वरी। बट दिस इज अ वेब फॉर्म, ये आपका एक वेब फॉर्म है कि जिसमें यू कैन डू द डिजाइनिंग इन टू वेज। तो जो मोस्टली जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, ये सोर्स कोड में जाके करते हैं, कोडिंग थ्रू कोडिंग दे आर डूइंग। ओके, डिजाइनिंग से भी कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कोडिंग है विद द टूल बॉक्स के साथ हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग हम लोग लर्निंग स्टेज में, तो वी विल डू अवर डिजाइनिंग विद दिस टूल बॉक्स, रेडीमेड जो टूल बॉक्स जो कंट्रोल्स है थ्रू विच वी कैन डू द कोडिंग्स। ओके, okay, now our today's जो हमारा टॉपिक है that is anatomy of web form. The what is the क्या है हमारा टॉपिक, anatomy of web form, मतलब web form कैसे बना है। ठीक है, how the web form is made, how the web form is made, web form कैसे बनाए। तो web form is, ये जो पूरा लाइन है ना, ये जो ये सारा एक्सप्लेन किया है वेब फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या वेब फॉर्म। ओके, तो सी हम पहले देखते हैं व्हाट इज वेब फॉर्म। तो ये क्लियर होगा कि यू कैन डिजाइन वेब फॉर्म यूजिंग इन द टू वेज। द फर्स्ट इज डायरेक्टली टूल बॉक्स में से, एंड द सेकंड इज यहाँ से कोडिंग करके। तो मैंने यहाँ पे जो था वो चेक बॉक्स एंड ये जो इस बॉक्स था वो मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया। एंड जो कैलेंडर है मैंने यहाँ पे कैलेंडर टाइप किया, तो ऑटोमेटिकली कैलेंडर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये टू वे से यू कैन क्रिएट दी designing or web form. Okay, now it is important to consider a few essential details about the ASP.NET web forms. ठीक है, उसका डिटेल्स एक्सप्लेन किया है। ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज है ना सोर्स कोड में, ये एक्सप्लेन किया है। व्हाट इज दिस लाइन, ये लाइन क्या है। ठीक है, पता होना चाहिए एज आई स्टूडेंट, वी शुड नो कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, ये हर एक का मीनिंग क्या है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसको बोला एनाटॉमी ऑफ वेब फॉर्म, पूरा स्ट्रक्चर आपका जो वेब फॉर्म है उसका स्ट्रक्चर क्या है। So every ASP.NET web form includes the standard HTML tags such as HTML head and body, which delimits the basic section of your web page. ठीक है, every ASP.NET web form includes the standard HTML tags, HTML head, body, you can see here. ठीक है, यहाँ पे क्या है HTML, ठीक है, इसमें head है, then body part है, the body part, okay, this is your body part। ये जो सॉरी डिजाइन में जाओगे ना, तो ये जो आपका ना ये दिखाई दे रहा है, ये दो लाइंस के बीच में जो है दैट इज मेन डिजाइन सरफेस आपका, वो क्या है बॉडी में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट में वी आर डिफाइनिंग दी फॉर्म, हम लोग क्या बना रहे हैं, एक फॉर्म बनाया है। ठीक है, जैसे आप HTML में करते थे वैसे फॉर्म बनाया, वो फॉर्म में एक डिवीजन क्रिएट किया है। ठीक है, एक डिवीजन क्रिएट किया है एंड विद इन दैट डिवीजन हम लोग क्या करें, डिजाइनिंग करें। BR मतलब क्या, ब्रेक। ओके, BR मतलब क्या, ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक आप डायरेक्ट तो यहाँ से एंटर करोगे तो भी ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज ये दोनों में ब्रेक नहीं है। अगर आपको उसमें स्पेस देना है, ठीक है, एंटर करोगे तो भी होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे ना, यहाँ पे, तो भी क्या हो जाएगा, वो ब्रेक ले लेगा। BR टैग, ठीक है, विच टैग, BR टैग।
मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, मेरा कीबोर्ड खराब है। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। तो देखो नाउ यू कैन सी है, एक मिनट है, 2-3 बी आर लिखते हैं। कहाँ पे है? चेक बॉक्स के नीचे, चेक बॉक्स के नीचे हमको लिखना है ना, चेक बॉक्स के नीचे। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, मैं दे दिया एंटर, देखते हैं अभी उसमें आया है कि नहीं। आ गया स्पेस। ओके, डायरेक्ट में ऐसे एंटर दूंगी तो भी चलेगा, इफ यू वांट टू गिव दी थ्रू दिस कोडिंग थ्रू आपको करना है तो भी चलेगा। क्लियर? तो एवरी जो वेब फॉर्म है, ये वेब फॉर्म है, उसमें कौन सा क्या क्या रहता है? HTML हेड, टाइटल, जो HTML के बेसिक्स जो स्टैंडर्ड टैग्स है, स्टैंडर्ड टैग्स अवेलेबल है, ठीक है। विद इन दैट टैग्स हम लोग क्या करते हैं, विद इन द बॉडी बॉडी टैग हम लोग क्या करते हैं, वी आर डूइंग आवर डिजाइनिंग। ओके, जिसको HTML आता है वो डायरेक्टली यहाँ से दे कैन डू द कोडिंग विद दिस सेक्शन, सो उसको से वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। You can insert additional HTML tags such as paragraph of text, p tags, heading tags, tables and so on. You can insert the HTML tags. आप HTML tags जो है वो insert कर सकते हो. Along with HTML tag, you can add ASP.NET only elements to your web page. For example, ASP button. Okay, represent the clickable button that triggers a task on the web server. मतलब you can create, you can write any HTML tags, but आपको add क्या करना पड़ेगा आगे? ASP. Okay, and लास्ट में क्या लिखना होगा? रन एट सर्वर बाय, बिकॉज वो अभी कहाँ पे रन होगा? ब्राउजर में रन होगा। ओके, तो सर्वर पे वो रिक्वेस्ट आएगा, तो यू हैव टू ऐड दिस लाइन रन एट सर्वर, एंड आगे क्या लिखना है? ASP लिखना है, ठीक है। क्लियर? okay, now the first क्या है? The page directive. Okay, the page directive, the default.aspx page, but like all ASP.NET platform consists of 3 sections. The first section is page directive. The first section is page directive. This is your page directive. ये क्या है? Page directive मतलब page related information. ये जो first line है उसको क्या बोलते हैं? Page directive. Page directive. Okay, this gives the information about your page. आपने जो वेब फॉर्म सिलेक्ट किया ना उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। The page directive gives ASP.NET basic information how to compile the pages. ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन सेम लाइन है जो देखते हो, दिस इज द फर्स्ट लाइन, पेज डायरेक्टिव। इसको क्या बोलते हैं? पेज डायरेक्टिव मतलब पेज का जो इंफॉर्मेशन है वो हमको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। ओके, the page directive, it indicates the language you are using for your code and the way you connect to your event handler. Okay, if you are using the code behind approach, the page directive also indicates where the code file is located, name of your code. ठीक है, see the page, okay, language we are using, कौन सा लैंग्वेज यूज करें ये पेज में? C# लैंग्वेज यूज करें। ऑटो इवेंट वायर अप, व्हाट इज द ऑटो इवेंट वायर अप? मतलब क्या है कि आप इवेंट यूज कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट उनका इवेंट वी आर यूजिंग, यस ट्रू, ठीक है। दिस इज, ये लाइन जो है ऑटोमेटिकली आएगा, हमको कुछ नहीं करना। हमने ये अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं किया है, मैंने ओनली क्या लिया है? ये कैलेंडर लिया है। बाकी जैसे हमने न्यू वेब फॉर्म लिया तो ये पूरा रेडीमेड था, ठीक है, ऑल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल था। तो हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये सोर्स कोड में ये क्या है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? तो फर्स्ट लाइन जो गिव्स द बेसिक डिटेल्स अबाउट योर एप्लीकेशन, कि जो हमारा पेज जो है, ये जो वेब फॉर्म 1 दैट इज हमारा पेज है, उसमें हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करें? C# लैंग्वेज। तो इट ऑटोमेटिकली कम्स। हम वहाँ पे अगर हमने VB सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे क्या होता? VB लिख के आता। वहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज चूज करा, यहाँ पे क्या लिख के आता? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आता। वो ऑटोमेटिकली सेट करता है, ठीक है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन ऑटो इवेंट वायर अप, यस ट्रू, हम लोग इसमें बाय डिफॉल्ट जो इवेंट से दे वो वी कैन यूज, तो ट्रू है। कोड बिहाइंड, व्हाट इज द कोड बिहाइंड? कोड बिहाइंड मतलब क्या? एवरी पेजेस के लिए हम लोग डिजाइन है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वी आर डूइंग द कोडिंग। तो जो कोडिंग जो पेज है उसका नेम क्या है? webform1.aspx.cs मतलब कोड फाइल। सी दिस इज, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक बटन ले रही हूँ, ठीक है, आई एम टेकिंग दी वन बटन हियर। ओके, नाउ अभी मुझे फॉर एग्जांपल ये चेक बॉक्स है, डेट मतलब कैलेंडर आई एम टेकिंग, ठीक है, ये लिस्ट बॉक्स है। व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी तो कुछ तो होना चाहिए कि नेक्स्ट पेज पे जाना चाहिए या तो कुछ भी है। तो फॉर दैट आई हैव टू डू सम कोडिंग, मुझे कोडिंग करना पड़ेगा। तो मैं कोडिंग कहाँ पे करूंगी? वेयर इज द कोडिंग सेक्शन? कोडिंग सेक्शन कहाँ पे है? दिस इज अ डिजाइन फेस। ये क्या है? डिजाइन फेस है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे .aspx है। तो वेयर इज द कोडिंग सेक्शन? कोड कहाँ पे करेंगे? तो कोडिंग सेक्शन कहाँ पे करेंगे? क्लिक, डबल क्लिक करो बटन पे। ओके, बटन पे डबल क्लिक करोगे तो भी कोडिंग सेक्शन मिलेगा। अदरवाइज सी हियर, यहाँ पे webform1.aspx में ये
CS फाइल है, इस पे क्लिक करोगे तो कोडिंग पेज ओपन होगा। पहले हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, सी दिस इज योर कोडिंग, यहाँ पे यू विल राइट योर कोडिंग, दिस इज अ कोडिंग सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? कोडिंग सेक्शन है। वेब फॉर्म 1 ही है, aspx.cs, ये जो पेज है ना उसका कोडिंग सेक्शन है, मतलब उसका एक्सटेंशन क्या है? CS, कोड फाइल। ओके, सीएस मतलब क्या? कोडिंग सेक्शन। यहाँ पे देखो, अगर इफ यू विल क्लिक इन दिस नाउ, डबल क्लिक करोगे बटन पे तो भी ये पेज ओपन होगा। ओके, मतलब बटन 1 की क्लिक इवेंट में, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन, ये बटन पे जो क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए? जो भी व्हाटएवर कोडिंग यू विल राइट हियर ना, दैट विल परफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज अ कोडिंग सेक्शन। एवरी डिजाइन पेज के लिए, हर एक वेब फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या है? एक कोड फाइल है, कोडिंग फाइल है, कोडिंग सेक्शन पे जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। तो यहाँ हियर यू विल राइट द कोड, आप यहाँ पे क्या करोगे? कोड लिखोगे। क्या कोड लिखोगे? जो भी आपको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट कोई पेज पे जाना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू गो टू नेक्स्ट पेज, व्हेन जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी तो हियर आई विल राइट सम कोड, मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी। तो अभी आपको मैंने कोडिंग सिखाया नहीं है, बट वी विल राइट द कोडिंग इन सी शार्प लैंग्वेज। कौन से लैंग्वेज में हम लोग कोडिंग करेंगे? जो सी शार्प लैंग्वेज पढ़ा ना, उसमें ही वी विल डू दी कोडिंग। तो एक है रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स, एक मिनट, रिस्पॉन्स, स्टूडेंट एक मिनट है, एक मिनट स्टूडेंट। यस सॉरी, ओके, रिस्पॉन्स से हियर ऑटोमेटिकली आएगा, आपको उसमें से ही लेना है। ठीक है, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए वी हैव दी कोडिंग है रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ओपन दी ब्रैकेट, ओके, एंड इन्वर्टेड कॉर्ड में आपको कौन से पेज पे जाना उसका नेम। तो हमने यहाँ पे कोई वेब फॉर्म नहीं लिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक वेब फॉर्म बना हुआ है डिफॉल्ट करके डॉट एएसपीएक्स, एक पेज बना हुआ है जो ऑलरेडी हमको दिया था, तो मैं आई एम गिविंग दैट नेम, मैं उसका नेम दे रही हूँ। तो नेम कैसा है? डी कैपिटल है, ओके, DEFAULT, डिफॉल्ट डॉट ASPX, ओके। एंड ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ये जस्ट मैं आपको भी एग्जांपल दिखा रही हूँ, आई विल शो यू, आई विल लर्न टीच यू इन डिटेल्स। ठीक है, क्लोज करो एंड सेमीकोलन करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? क्या कोडिंग किया मैंने? इसमें कोडिंग किया, ये जो बटन है ना उस पर डबल क्लिक किया तो कोड पेज ओपन हो गया। देखो कोडिंग, दिस इज द कोडिंग पेज, नेम स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, जैसे हम लोग कंसोल एप्लीकेशन में था ना कोडिंग पेज, उसमें हम लोग डिजाइन नहीं कर सकते थे, बट इसमें तो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो डिजाइन, एवरी डिजाइन पेज हैज ए कोड फाइल, कोड पेज है। ठीक है, तो उसमें मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, कहाँ पे लिखा? बटन 1 की क्लिक इवेंट। व्हाट इज इवेंट? वो भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लिक इवेंट मतलब क्या? जब हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो होना चाहिए रन। ठीक है, तो इसका भी हम लोग रन करते हैं। आई एम रनिंग दिस पेज। ठीक है, ये डिजाइन हमने वेब फॉर्म 1 बनाया है, वो मैं डिजाइन करूँ। जब मैं ये बटन पे क्लिक करूंगी तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? कौन सा पेज पे स्विच होना चाहिए? क्या नेम दिया मैंने? डिफॉल्ट पेज ओपन होना चाहिए। कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? डिफॉल्ट पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रन करी हूँ। आई एम रनिंग दिस एप्लीकेशन, देखो रनिंग दिस एप्लीकेशन। बेटा ये थोड़ा टाइम ले रहा है। दिस इज वेब एप्लीकेशन, इट विल रन इन ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में रन होगा वो। एक्चुअली मेरे सिस्टम में ना रैम का साइज कम है। ठीक है, रैम कम है मेरे सिस्टम में, इसीलिए वो थोड़ा स्लो चल रहा है। मेरा डॉटनेट जो है ना वो स्लो चल रहा है, और विंडोज 10 डालने के बाद तो और ही स्लो हो गया। मुझे लगा विंडोज 10 के बाद अच्छा वर्क करेगा, वो और स्लो हो गया, पता नहीं रैम की वजह से शायद।
एक मिनट, आई एम अगेन रनिंग, अगेन मैं उसको रन करके उसको मैंने डिबगिंग स्टॉप कर दिया। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर उसमें सेट होगा ना, उस वो उसमें आपका आउटपुट विल कम। ओके, यू कैन चेंज योर ब्राउजर सेटिंग। अगर आपके सिस्टम में 2 to 3 ब्राउजर्स है तो आपको जिसमें डिस्प्ले करवाना आउटपुट, यू कैन चेंज द ब्राउजर सेटअप, जो वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गूगल क्रोम में नहीं रन हो रहा है मेरा, यहाँ पे ये वाले ब्राउजर में रन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में होगा आपके सिस्टम में, अगर आपने कुछ सेट नहीं किया होगा तो। वेट वेट, हाँ वेट। ये स्टूडेंट प्लीज रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करना। टॉपिक आज हम लोग खत्म करते हैं ना, वेब फॉर्म वाला। ओके, सी है लोकल लोकल होस्ट पे भी वो रन हो रहा है। ठीक है, webform1.aspx आएगा, वो लोड होने में टाइम ले रहा है, आउटपुट आएगा webform1.aspx। ठीक है, कौन सा वेब फॉर्म था, मैंने नाम चेंज नहीं किया था, webform1 ही था, तो ये आप में डिस्प्ले हो रहा है webform1.aspx। ज्यादा ही टाइम ले रहा है मेरे सिस्टम में। वेबफॉर्म 1 जो था उसमें हमने क्या क्या लिया था, एक तो कुछ तो कैलेंडर वी हैव टेकन। ठीक है, और उसमें ड्रॉप डाउन लिया था, चेक बॉक्स लिया था, लिस्ट बॉक्स लिया था, नीचे एक बटन लिया था। ठीक है, तो वो डिजाइनिंग यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करके रखो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ना हम लोग करेंगे तो हमारा बहुत ऑनलाइन में वो टाइम वेस्ट होगा। तो जो बेसिक्स मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, एडवांस यू विल डू इन योर सिस्टम। ठीक है, ये लोड होने में बहुत टाइम ले रहा है, आउटपुट एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा ही टाइम ले रहा है। सी, ठीक है, तो ये कुछ तो हमने यहाँ पे चेक बॉक्स वगैरह लिया था। रिज्वाइन करो स्टूडेंट, तो प्लीज रिज्वाइन। ठीक है, यहाँ पे कैलेंडर लिया था, ये लिस्ट बॉक्स लिया है, चेक बॉक्स लिया है, कुछ हमने सामने लिखा नहीं है, सो इट इज नाउ ब्लैंक है। और बटन था। ठीक है, व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस बटन, मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो क्या होना चाहिए, जो डिफॉल्ट पेज है वो ओपन होना चाहिए। वाई, बिकॉज मैंने क्या दिया था बटन के क्लिक इवेंट में, क्या कोडिंग लिखा था, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ऑन द सेकंड पेज। ठीक है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगी ना, देखो मैं बटन पे क्लिक करी हूँ, तो कौन सा पेज आ गया, डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स आ गया, डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पेज, डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स पेज। तो क्या किया हमने, एक पेज पे से सेकंड पेज पे हमने स्विच किया। ओके, कहाँ से किया, कोडिंग पेज में किया। आई हैव रिटन द कोड इन द कोडिंग सेक्शन में, मैंने कोड लिखा था। ओके, तो दिस इज आपका स्विच बिटवीन द पेजेस। ठीक है, दिस इज डिफॉल्ट पेज, ये डिफॉल्ट पेज है। प्लीज रिजॉइन स्टूडेंट्स, प्लीज रिजॉइन। ओके, ये जो है आपका डिफॉल्ट पेज जो ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने क्या किया है, एक पेज पे से सेकंड पेज में मूव